Hello, my dear students. Assalamu alaikum. So, hope all of you are well and studying well. Right? In the last recording, we learned about the ascertainment of interest. Right? We seen the interest calculations in the different case scenarios. Now, here we are to learn ascertainment of total cash price. Up till now, what we have done? Up till now, we have learned the theory portion of the chapter. Thereafter we learned about the that difference between hire purchase and installment sale transactions. Thereafter we learned the terminologies used in hire purchase, and thereafter we seen the interest calculations and different case scenarios. Right, while calculating interest in one of the case scenario, cash price was not given, where I said that this is in fact the method of ascertaining total cash price. Right, so that calculations will be used here. Now if you see, calculation of total cash price can be done by two methods: without using annuity table and one with the help of annuity table. Before going to annuity, we have seen this method without using annuity table. So let's see this, recall this method, and thereafter we see the calculations. See, we have learned the calculations also there in our last session. We have also seen the sums along with the exercise questions and illustrations, but one particular illustration given here for without using annuity table is not solved by us. So we will see today illustration 1 also. Now recalling you this method कि मैम हमने कैसे कैश प्राइस पर लिया इंटरेस्ट से. So see here in while calculating interest, we were said that cash price is not given, interest amount per annum is also not given. So how you will do that? You have to do the reverse calculations. In this case I marked you as important also. Here you will have to start with the reverse calculations. That means you have to start with the last year. Right, from last year closing outstanding, you will add the installment amount to get the total outstanding. From total outstanding, you will exclude the interest portion to get the opening outstanding, and afterwards repeating the same process and reaching at the year 1, you will add the opening outstanding of year 1 with the down payment amount to get the cash price. So this is the method that ascertaining cash price without using annuity table. Same things they have written here in the module. Right, and we have seen this method, we have done the calculations. So I hope that I must not go much in detail and directly start with the illustration 1. Let's read it out. Asha purchased a truck on hire purchase. As per terms required to pay, he is required to pay 70,000 down. So that is your down payment, right? Chalo, let's start and write down each and every given points. Chapter 11, illustration 1. Right, now you are given down payment of rupees 70,000. Thereafter 53,000 at the end of the first year, 49,000 at the end of the second year, and 55,000 at the end of the third year. That means you have 3 yearly installments, am I right? And you are given the particular installment amounts. So 3 years installment amount is also given to you. Right? Thereafter they have said interest is charged at the rate 10% per annum. So interest also is given to you, interest at the rate 10%. Now you are not given with the cash price, right? So let's see, you are required to calculate total cash price of the truck and interest paid with each installment. So interest paid per annum and cash price is to be calculated by us. So let's start with our calculations. Right, we have to find cash price and interest per annum amount. Right, now let's have the calculations. You need to draw the repayment schedule as we used to draw. First will be your year.
right? Thereafter it will be your closing outstanding. We are doing the reverse calculations, right? Closing outstanding. If you add installments to closing outstanding, you get you get total outstanding. Now you need to compute interest at the rate 10%. From where you get the opening outstanding. 3, 2, 1. Reverse calculations. If you remember, closing outstanding for last year must always be nil. ठीक है ना, लास्ट ईयर के एंड में तो हमने पूरा कैश प्राइस रीपे कर दिया रहता है, सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नील रहता है. ना इंस्टॉलमेंट्स देखे उल्टा जाने का यहाँ पे ध्यान रखना है. सो इंस्टॉलमेंट कौन सा आएगा, पहले 55 से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो 55, 49 एंड 53. ओके, 55,000, 49,000, thereafter 53,000, राइट. अब आपको टोटल आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना है. सो यू विल एड अप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग विथ इंस्टॉलमेंट्स. सो व्हाट यू विल गेट, 55,000, राइट. Now you have to calculate the interest amount. So ma'am, how to calculate the interest amount? You will calculate it right ways. Interest calculations. This is your working note, right? Working note for your interest calculations. Now, if your cash price is 100, your interest is 10, you get installments of 110. Right? Now, cash price is 100, interest 10, installment 110. So here your installment is 55,000, right? So what will be your interest amount? Chalo, calculate it. 55,000 for year 3 we are calculating. 55,000 into 10 upon 110. 55,000 into 10 divided by 110. Chalo, 5,000. Yes, 5,000 rupees. So now what we will do, total outstanding से we will reduce our interest amount. So what will you get, opening outstanding 50,000. I hope this is clear to all of you. So जो थर्ड ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे सेकेंड ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा, राइट. सो in your second year you have the same 50,000 as your closing outstanding. Now what will you do, add up your installment amount. So क्या अमाउंट आएगा, 99,000. 50 + 49, सही है. चलो अब 99 से हमें इंटरेस्ट 10% निकालने का है. सो वर्क इट आउट. ईयर 2 का कैसे आएगा, 99,000 इंटू 10 upon 110. चलो, who will say me amount, 99,000 into 10 divided by 110. 9,000, right? Easy now. So 9,000 is your interest amount. So what will be your opening outstanding, 99 minus 9, that is 90,000. Opening outstanding of second year would be the closing outstanding of first year, right? So same amount here, closing outstanding of first year. Now 90 plus 53, 1,43,000 will be your total outstanding, right? Now calculate the interest amount. Year 1 equals to 1,43,000 into 10 divided by 110. Chalo, who will answer me? 143 into 10 divided by 110. 13,000 आ रहा है इंटरेस्ट अमाउंट, राइट बेटा? सो दिस इज योर इंटरेस्ट, 13,000.
So what will be your opening outstanding? 1,43,000 minus 13,000. That will reach about 1,30,000. So now you need to ascertain your cash price. Cash price is equals to opening outstanding of first year plus down payment. Right? What is the opening outstanding of first year? 1,30,000. And what was down payment? 70,000 if I am not wrong. So what is your cash price? 2 lakh rupees. Right? Chalo. Done, and you got the each and every interest amount too, right? So this is your final answer. 5,000, 9,000, 13,000 and 2 lakh. I hope now this is clear. So we have done with this sum also. Now they have one more illustration for you for the same method. Right? Let's do it. Thereafter we will learn the next method. Illustration number 2. A acquired on 1st January 2001 a machine under a hire purchase agreement, okay, which provides for 5 half yearly installments. See, don't confuse. हाफ ईयरली है मतलब 2 बार इंटरेस्ट आएगा ऑफ 6,000 ईच. ओके, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी आपको दे दिया है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1st July 2001. Assuming that applicable rate of interest is 10% per annum, calculate the cash value of machine, that is the cash price, right? ठीक है, चलो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 6,000 है, मतलब हाफ ईयर का इंस्टॉलमेंट होगा, राइट? एंड 2 बार इंस्टॉलमेंट आएगा 1 साल में, तो 1 साल के लिए हमारा 12,000 रहेगा, राइट? चलो अब हमें यहाँ पे ध्यान रखने की कौन सी चीज़ें हैं. उन्होंने इस तरह से टेबल बनाया है, हम हमारे रिपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से ही जाएंगे. इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये लोग इस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम टू इट, वी कैन फॉलो द रिपेमेंट शेड्यूल. प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह से जिस मेथड से हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से रिपेमेंट शेड्यूल्स बनते हैं एक्चुअल में बैंक में भी, राइट? चलो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है तो हाफ ईयर, तो ये इंटरेस्ट रेट पर एनम रहता है, राइट? अगर कुछ भी ना बोला हो तो इट इज अज्यूम दैट इट इज अ पर एनम रेट. तो हाफ ईयर का रेट कितना होगा? 5% होगा. चलो राइट, तो हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हाफ ईयरली, तो वो हमें देखने का बात नहीं, हम इंटरेस्ट को ही 5% कर लेते हैं. 5 इंस्टॉलमेंट्स रह गए हमारे. चलो नाउ illustration number 2. थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ तो मेरे को जगह मिल जाए. राइट, चलो 5 half yearly installments at the rate of 6,000. सो डायरेक्टली हम ये बना लेते हैं ईयर, सॉरी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, राइट? चलो हम, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है, इंस्टॉलमेंट्स. सो 5 4 3 2 1. नाउ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का, लास्ट पीरियड का नील रहता है. इंस्टॉलमेंट अमाउंट, उससे मिलेगा टोटल आउटस्टैंडिंग.
फिर आएगा इंटरेस्ट एट द रेट 5%। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 105। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। एंड देयर आफ्टर वी गेट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। नाउ इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स कितनी थी, 6000 पर इंस्टॉलमेंट। सो दिस विल बी 6000। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए, 6000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, 286 रुपीज़, राइट। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, 6000 माइनस 286, 5714। So that will be your closing outstanding of previous year 4, right? Now 5714 plus 6000 total outstanding आएगा 11,714। अब इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाई 105,558। $11,156, right? Sorry. Chalo. Now this will be the closing outstanding of third year. Add 6,000, 17,000. So now 11,156 plus 6,000, चलो क्या आएगा, कैलकुलेट इट, 17,156, राइट। नाउ इंटू 5 डिवाइड बाई 105 प्लस 6,000, उससे इंटू 5 डिवाइड बाई 105, 817 रुपीज़, राइट। नाउ व्हाट विल बी योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 817 17156। चलो 16,339। So that will be the closing outstanding of previous installment, 16,339 plus 6,000, 22,339. Interest into 5 divided by 105, 1064. $21,275, right? Now chalo, this will be the closing of previous installment plus 6,000, so 27,275। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, 1299। सो अब इसको माइनस करके आपको मिलेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 27,275 माइनस 1299, 25976।
25976. I hope you all are getting this answer. This will be the opening outstanding of the first installment, right? चलो, $25,976 or $977, whatever, right? So this will be your cash price, right? डाउन पेमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन बेटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम अज्यूम कर लेते हैं कि देर इज नथिंग अबाउट डाउन पेमेंट. डायरेक्टली अवर कैश प्राइस विल बी 25,976. ₹1 का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का चलता रहता है, सो नो वरीज, राइट. इसको अगर 1299 से 1300 कर दोगे तो वो उतना सा थोड़ा रहेगा, राइट. सो दिस इज योर कैश प्राइस. आई होप नाउ दिस इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू. दोनों इलस्ट्रेशन हमारे सॉल्व हो गए. इसके साथ हमारा कैश प्राइस का फर्स्ट मेथड भी होता है कंप्लीट. नाउ गोइंग विद द सेकेंड मेथड यूजिंग द हेल्प ऑफ एन्युइटी टेबल. चलो, अब यहाँ पे कैसे बनेगा हमारा कैश प्राइस. अब तक हम क्या करते थे, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. सही है बेटा, राइट. तो अब यहाँ पे ये लोग ऐसा करते हैं, यू मस्ट यूज द एन्युइटी. वाई सो, मतलब वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए इंस्टॉलमेंट्स की, राइट. सभी इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आप कंप्यूट कीजिए तो आपको मिल जाएगा आज का वैल्यू, और उसमें डाउन पेमेंट ऐड कर दीजिए तो डायरेक्टली आपको कैश प्राइस मिल जा सकती है. अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से वो अमाउंट को डिस्काउंट करके, राइट. इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंटिंग करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ. डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका 1/1 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट हो वो होता है रेस टू n नंबर ऑफ ईयर, राइट. सो दिस इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर. लेकिन मैम ये लोग तो एन्युइटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, चलो समझा देती हूँ बेटा. एन्युइटी का मतलब ये है कि आप अगर मानो कि ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है इक्वल है हर साल. अगर आपको बोला 3 इंस्टॉलमेंट्स है, 6,000 6,000 6,000, राइट. तो 3 इंस्टॉलमेंट्स हुए और तीनों का अमाउंट सेम है. तो आप हर एक का डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करने के बजाय आप मानो कि यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट और इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे यूज करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1/1, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1/2, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1/3. सही ना, इस तरह से आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे. अब आप इस सभी को कंप्यूट करो. चलो, 1/1.1, right. So that way if you see 1/1.1 0.909, right. फिर 1/1.1 into equals to तो 0.826, 0.909, 0.826 एंड 0.751, राइट. सो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि ईयर 1 2 3 इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज सेम 6,000 6,000 6,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1/1, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1/3. सो दिस कम्स टू 0.909, 0.826, 0.751. अब इस सभी को ऐड कीजिए, 9 1 10 1 6 7 1 8 10 16 16 and 8 24, 2.486. तो ये जो फिगर आया ना बेटा 2.486, दिस विल बी कॉल्ड योर एन्युइटी.
ठीक है। एन्युइटी मतलब क्या, अब आपको हर साल 6000 इंटू 0.909 वो जो आंसर आए वो, 6000 इंटू 0.826 जो आंसर आए वो, 6000 इंटू 0.751 जो आंसर आए वो, और उसका टोटल लगाए, ये आंसर आपको आता है, राइट। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर ऑल इंस्टॉलमेंट्स एट द ईयर 0। लेकिन ये इतना बड़ा टीडियस कैलकुलेशन करने की बजाय आप सिर्फ इतना कीजिए, 6000 इंटू 2.486, दिस इज कॉल्ड एज एन्युइटी फैक्टर। तो आपको जो आंसर आएगा ना, वो ये आंसर और ये आंसर सेम रहेगा। इफ यू वांट टू चेक इट, यू कैन चेक इट विद द हेल्प, राइट। 6000 इंटू 2.486 और हर साल का जो आपने कैलकुलेशन करके टोटल लाया, दोनों सेम आता है। सो दैट 2.486 को हम एन्युइटी कहते हैं। एन्युइटी इज यूज्ड वेयर द कैश फ्लोज आर सेम, मतलब कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट हर साल में सेम था, राइट। सो वेयर द कैश फ्लोज ऑफ एवरी ईयर आर सेम, यू कैन यूज द हेल्प ऑफ एन्युइटी टेबल इफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड द कैश फ्लो ऑफ एवरी ईयर आर सेम। तो ये हुआ आपका सभी चीजें। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू द एन्युइटी फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एज एन्युइटी फैक्टर, राइट। चलो, तो अभी मेरे को इसमें आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका है। अब हम आगे इलस्ट्रेशंस देखते हैं, वहां पे अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हम देखते हैं, राइट। On 1st April 2001, a manufacturing company buys a hire purchase system, a machinery of rupees 90,000 for rupees 90,000. चलो, okay. Now, by 3 equal annual installments combining principal and interest. By 3 equal annual installments combining present value and interest. The rate of interest was 5% per annum. Rate of interest कितना था? 5% per annum. Calculate the amount of cash, price and interest. Now you are given the annuity of 1 rupee for 3 years at 5% interest rate. So ये आपका directly annuity दे दिया. You need not discount each and every year and find out the annuity. Okay. So you are directly given with the annuity of 3 years at the 5% interest rate. So आपका काम बहुत आसान हो गया, right? You directly have to find out the cash price. चलो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। चलो, 90,000 का मशीन है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो पर एनम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मेरे को बोलिए। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा? 90,000 डिवाइड बाय 3, 30,000। एम आई राइट? चलो, 30,000, तो ये आएगा आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब आपको पास डायरेक्टली एन्युइटी फैक्टर भी उन्होंने दे दिया है। अगर आपको कंप्यूट करना है तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 1/1 प्लस 0.05 रेज टू 1, उसका जो आंसर आया वो फिर सबका टोटल लगा लेना, फिर इंटू 30,000 डायरेक्टली कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/1 प्लस 0.5 रेज टू 2, 1/1 प्लस 0.5 रेज टू 3, आप ऐसे करके भी टोटल लगा के इंटू 30,000 कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली इंटू 30,000 कर सकते हैं, या फिर ये तीनों का जो प्लस करना है ना, ये वाला एन्युइटी फैक्टर फाइंड करना है, वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आ सकता है। 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 प्लस आर मतलब इंटरेस्ट रेज टू एन मतलब पीरियड माइनस 1 अपॉन आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। चलो, राइट। अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे आंसर आ जाता है। कम टू अवर बुक्स, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, राइट। नाउ यू आर गिवन विद द इंफॉर्मेशन, आपका मशीनरी का प्राइस कितना है? 90,000 रुपीज, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, सो इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी योर 90,000 upon 3 equals to rupees 30,000। चलो, ठीक है। नाउ अब आपको एन्युइटी फैक्टर भी डायरेक्टली दे दिया हुआ है, कितना है वो? 2.723। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूट करने की। इंटरेस्ट रेट भी 5% गिवन है, गिवन इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 5% per annum and annuity factor for 5% 3 years equal to 2.723। चलो, इतना ही है ना? ओके, यहाँ पे डाउन पेमेंट की कोई बातचीत नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है आपका।
सो आपका क्या बनेगा, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट तो दिया नहीं है, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। अब सभी इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम है, 30,000 इंटू एन्युइटी फैक्टर आपको डायरेक्टली दे दिया है 2.723। चलो क्या आंसर आता है, 30,000 इंटू 2.723, 81690। सो दिस इज योर कैश प्राइस। अब मैम अगर ये 2.723 क्वेश्चन में हमें नहीं दिया होता तो हम कैसे कैलकुलेशंस करते, तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस करते, 1 2 3 कैश फ्लोज दैट इज योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट 30,000 30,000 30,000। अब मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी। यहाँ पे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 1/1 प्लस 0.5 1/1 प्लस 0.5 1/1 प्लस 0.5 अब ये इसका जो आंसर आएगा पॉइंट में, इन दोनों को माइनस करके जो प्रोडक्ट मिलेगा इन सभी का टोटल लगा लो तो आपको 81,696 जैसा कुछ आंसर आएगा। चलो ट्राई कर लीजिएगा। 1 डिवाइड बाई 1.05 0.95238 0.952 0.907 0.864। तीनों का मल्टीप्लिकेशन लगा के भी आपको ये आंसर आ सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.864 0.954 कितना था 952907। चलो एग्जैक्ट आया 2.723। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया था, आप इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 30,000 इंटू 2.723। ऐसा ना करना चाहे तो ईयरली कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इंटू 952 28560। अब तीनों का टोटल लगा लो 27120 25920। चलो 81,600 आसपास ही आ गया। सो इस तरह से आपका आंसर राउंड अबाउट सेम रहेगा। इस तरह से आप एन्युइटी फैक्टर जो अगर एग्जाम में ना दिया हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास उन्होंने टेक्स्ट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखें 1 प्लस r⁻n -1 अपॉन r इंटू 1 प्लस r⁻n। तो यहाँ पे दिक्कत ऐसा आती है कि हम ये क्यूब्स कैसे करें मैम, 3 है इसलिए मैंने ये मेथड नहीं बता रही हूँ, आप इजी मेथड से करना। 0.505 -1 अपॉन 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 इससे भी आपका आंसर 2.723 आएगा। बट आपको ये स्क्वायर्स का अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, अलग टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, बाकी आंसर यही आएगा, राइट। सो यहाँ पे कैश प्राइस असरटेनमेंट का दोनों मेथड हमारा होता है कंप्लीट। ओके, वी हैव डन विद बोथ ऑफ द मेथड्स, राइट। चलो नाउ वी विल सी द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ hire purchase and installment, right, in our next lecture. Thank you so much.